Romans 1:3-4. रोमियो का पुस्तक उसका पहला अध्याय 3 और 4 वचन। Concerning his son Jesus Christ, our Lord, of the seed of David according to the flesh, according to genealogy, he was born according to the seed of David, and declared to be the Son of God. Now pay attention, and if you want to underline, he was declared to be the Son of the living God. With power according to the Spirit How? of holiness. With power according to the Spirit of according holiness. to the Spirit of holiness. Resurrection Hindi, from the dead. From the resurrection from the dead. हिंदी में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। Amen. The second part of the scripture, very careful, listen. और अभी दूसरी, He was declared to be the Son of God. How? With power. वह परमेश्वर का पुत्र Jesus did not come powerless. सामर्थ्य के बगैर परमेश्वर नहीं आए यहाँ पर। He was declared to be the Son of God. वह परमेश्वर के पुत्र इस तरह से कहलाया गया With power. सामर्थ्य के That साथ। also what type of power? और वो भी किस तरह का सामर्थ्य? Not ordinary power. साधारण सा सामर्थ्य नहीं, With the power of resurrection. वह मुर्दों में से जी उठने वाला सामर्थ्य। And I believe today we are going to see something very strong in connection to this. और इसके संबंध में रहने वाला बहुत अति प्रमुख चीज को आज हम देखने वाले हैं। At his baptism, वह उसने बपतिस्मा लिया। I believe you're all listening to. At his baptism, see, you will be recognized. A believer. आप एक विश्वासी इस तरह से पहचाने You will जाओगे। be declared believer. आप विश्वासी ऐसे कहलाए जाओगे, You know, by the devil. शैतान के द्वारा। Only when he will see the power of God in you. वो तभी ही जब वह परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर देखेगा। In book of Acts, और प्रेरितों की पुस्तक में लिखा गया है 7 gentlemen were using the name of Jesus. 7 लोग परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल कर रहे थे। And they were telling the demons. और वह शैतान को कह रहे थे In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Paul speaks. पौलुस कहता है In the same name of Jesus. उसी नाम से वो कहता है Get out. उसी नाम से आप तो निकल जाओ। Every Tom, Dick and Harry demons ran away. और हर एक साधारण सा दुष्टात्मा भाग गया। But one day, लेकिन एक दिन one demon knew एक दुष्टात्मा को पता था the power of that name उस नाम का सामर्थ्य is creating fear. वह डर को पैदा करता है। But the lips that were using that name, लेकिन जो जुबान उस नाम का इस्तेमाल कर रहे थे ना, they didn't have power of that name. उस जुबान को उस नाम का सामर्थ्य के बारे में पता नहीं था। So the demon said, इसलिए वो दुष्टात्मा कहने लगा, हमारा भी हालत ऐसा ही है, हमसे शैतान आराम से कहता है, you know, the demon said, And the demon- I know Jesus, मैं तो यीशु को जानता हूँ, I know Paul. मैं पौलुस को भी जानता हूँ। Angel is not saying, यहाँ पर स्वर्गदूत नहीं कह रहा demon है, is saying, शैतान कह रहा I है, know Paul. मैं पौलुस को जानता हूँ। He knows what he knows you. क्या आपके बारे He में जानता knows है? whether you have power or no. वह जानता है कि आपके पास सामर्थ्य है या नहीं। He said, उसने I कहा, know Paul. मैं तो पौलुस को जानता हूँ, Very, very dangerous fellow. बहुत बहुत खतरनाक I व्यक्ति। know Jesus, मुझे यीशु के बारे में भी पता Son of the है, living God who came out from the dead. और जीवित परमेश्वर का पुत्र जो मुर्दों में से भी जी उठा। तू कौन है? लेकिन who are you? Who are you? लेकिन तू कौन है? उतना महान नाम को तेरे जुबान से बोलने वाला तू कौन है? That mighty name You know you are why? taking it from your name. Who are you? You understand? आपको समझ में आ रहा है? Why? क्यों? Why? क्यों? A pen without ink is a beautiful showpiece. एक पेन जिसमें शाई नहीं है वो सिर्फ एक शोपीस के समान है। Believer's life without the power of God is a beautifully dressed gentleman on Sunday. और विश्वासी का जिंदगी बगैर परमेश्वर के सामर्थ्य के वह ऐसा जिंदगी है Can कि a pen without ink ever write?
क्या एक पेन शाही के बगैर लिख सकता है? The writer may be having a beautiful story in his heart, but he can never be able to write it until there is a ink in that pen. लेखक के पास एक बहुत अच्छी सी कहानी हो सकती है, लेकिन वह तब तक नहीं लिख सकता जब तक उस पेन में शाही You may be हो। having all theoretical knowledge of the Lord of God, but if you don't have the power of the ink, you can never write that power आपके in पास- your life nor in any other's life. और आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज परमेश्वर के बारे में परमेश्वर बहुत क्या कुछ कर सकता है, परमेश्वर कौन है, कितना महान है, कितना ताकतवर है, इस सब का ज्ञान का भंडार आपके रग रग में बसा होगा, परंतु अगर उस परमेश्वर का ताकत हमारी जिंदगी में नहीं हो तो उस ताकत को, उस सारे ज्ञान को, उस ताकत का ज्ञान को हम अपने खुद की जिंदगी में दर्शा नहीं पाएंगे। And the demon will say, और दुष्टात्मा कहेगा, I know you, मैं तुझे जानता हूँ, कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यू कैन डू नथिंग टू मी। How was Jesus declared? किस तरह से यीशु के बारे में कहा गया? Listen, on the day of his baptism, उसके बपतिस्मा के दिन के the heaven opened wide. वह स्वर्ग खोला गया He was declared Son of God. और वह परमेश्वर का पुत्र इस तरह से कहलाया But गया। Apostle Paul says, लेकिन अपोस्तल पौल कहता है, no, नहीं, only. सिर्फ। Can somebody in English say only? अंग्रेजी में ओनली कहेंगे। Only when he came out of the dead. लेकिन सिर्फ जब परमेश्वर मुर्दों में से जी उठे, Only then सिर्फ तभी, he was declared the Son of God. सिर्फ तभी ही परमेश्वर के पुत्र इस तरह से वो कहलाए People of गए। God, परमेश्वर के बच्चे, the power of God is your property. परमेश्वर का सामर्थ्य आपका संपत्ति है, Don't lose it. उसको कृपया करके खोइएगा मत। Pastor, I want it. पास्टर जी, मुझे वो चाहिए। Yes, we will go on that journey. हाँ जी, उस सफर में हम जाएंगे, You don't have to suffer. लेकिन आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। You don't have to struggle. आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। There is a power of God. वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य है, It can set you free. वहां आपको छुटकारे में ला सकता है। In this church, इस मंडली में, in your life, आपके ही जिंदगी even में, as I'm speaking now, अभी ही मैं जब बात कर रहा you know हूँ, what I see in the spiritual realm? मैं आत्मिक क्षेत्र में क्या देख रहा हूँ पता है? You know what I see? आपको पता है मैं क्या देख रहा Everyone हूँ? who is paying ears, हर एक लोग जो इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं willing to believe. और जो विश्वास करने के लिए अपने मन को सौंप want to दे tell रहे you. हैं, मैं कहना चाहता हूँ, There are miracles that are being imported, being transferred. वहां पर It's चमक been transferred into your lives that are going to manifest step by step. और आपकी जिंदगी में अभी ही वह चमत्कार भेजे जा रहे हैं जो बहुत जल्दी ही प्रकट होंगे। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। But the secret also is written so clearly. लेकिन वहां पर रहस्य भी इतना सही में लिखा गया है, Through the spirit of holiness. पवित्रता के आत्मा के द्वारा। Now that is a powerful key. अभी वह एक बलशाली चाबी है। Amen. Amen. Last week I shared with you अब गुजरे हफ्ते मैंने कहा था, hundreds of aeroplanes. हजारों विमान, One aeroplane is filled with healing. एक विमान चंगाई से भरा हुआ है, Deliverance, छुटकारे के साथ, miracles, चमत्कार के साथ, Provisions. और सारे प्रोविजंस के They're साथ just flying above your life. आपकी जिंदगी के ऊपर मंडरा रहे हैं। Amen. आमेन। But they need a runway to land in your life. लेकिन उस आपकी जिंदगी में आने के लिए उनको एक धावन पट्टी And the Bible चाहिए। says, और बाइबल कहता है, such a power of God manifested in Jesus because of the spirit of holiness. Somebody say holiness. पवित्रता के आत्मा के द्वारा यीशु में इतना सामर्थ्य वह दर्शाया गया। Today it is so difficult आज के दिन इतना कठिन है to see holiness in our mind अपने मन में पवित्रता को देखने के लिए, or in our attitudes. या फिर अपने बर्ताव में पवित्रता I want देखने to के tell you लिए। something. मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, You build holiness, आप पवित्रता को बांधो, the power of resurrection will begin to land in your life. वह मुर्दों में से जी उठने का बल भी आपके अंदर somebody will tell me, लेकिन कोई तो मुझसे कहेगा, Pastor, पास्टर जी, Jesus made me holy by his blood. यीशु ने मुझे उनके लहू के द्वारा मुझे पवित्र बनाया है। What more holy I can become? उससे ज्यादा मैं कैसे पवित्र बन सकता Jesus हूँ? can buy you a brand new shirt, but to keep it clean is your responsibility. यीशु आपको एक नया सा वस्त्र लेकर दे सकते हैं, लेकिन उसको ठीक ठाक साफ सुथरा रखना का जिम्मेदारी आपका है। Now that is a responsibility of holiness. फिर वह पवित्रता का जिम्मेदारी हुआ है। Wherever Jesus went, जहाँ कहीं भी परमेश्वर यीशु गए, always miracles. हमेशा चमत्कार। Have you noticed it? क्या आपने उसको ध्यान दिया है?
If he goes on the mountain, वह पर्वत के ऊपर जाते हैं तो he fed 5,000 people. वहां Miracle. पर 5,000 लोगों को खाना खिलाया। he वहां goes पर in the चमत्कार। वह समंदर में जाते हैं तो Either multiple of fishes or himself will walk on the sea. या तो वहां पर बहुत सारे मछलियां मिलते हैं या तो वो पानी पर चलकर आते हैं। Correct? सही है ना? So much so, इतना कि जहां भी गया. wherever he went, Number one, listen. पहला चीज, When you walk in the holiness, जब आप पवित्रता में चलते हो, I asked the Lord. मैंने परमेश्वर No, से I'm going to पूछा, show you. I'm going to show you very soon. बहुत जल्दी मैं उसको दिखाऊंगा। Very interesting thing. बहुत दिलचस्प चीज I है। believe those who will adopt today's word in your life, जो कोई भी आज का वचन अपने जिंदगी में आप मान your लोगे ना, remaining months of 2018 will never be the same. आपके 2018 साल के बाकी के महीने वह सही में सामान्य नहीं रहेगा। I guarantee you that. मैं आपको उसके बारे में गारंटी Because देता I've हूँ, seen the power of God working. क्योंकि मैं परमेश्वर का सामर्थ्य काम करने का Wherever देखा he's हूँ। going, miracles, 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 जहाँ कहीं miracles. पर भी वो जा रहा है वहाँ चमत्कार 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 होते ही जा रहा है। Amen. आमेन। Why? क्यों? Runway is clear. वहाँ धावन पट्टी बहुत The क्लियर runway है। of holiness is clear. पवित्रता का धावन पट्टी क्लियर है। Hallelujah. Hallelujah. And I believe और मैं विश्वास करता the हूँ Lord is determined to do greater and bigger things. परमेश्वर उतर आ चुके हैं एक बहुत बड़ा But सामर्थ्य many की of चीज you को are करने going के through a लिए। season of discouragement last few days. थोड़े दिनों से तो बहुत आप में से बहुत सारे लोग निराशा में जा रहे हैं। Suddenly you're feeling dry and your feelings are running low. अचानक से आपको बहुत ड्राई महसूस, सूखा महसूस हो रहा I है। encourage you, और मैं आपसे don't let the devil cheat you. God has never given up upon you. God has never let you down. God has never left you. It is a season of dryness. The devil is attacking you. Pray, pray, pray. The Lord is going to lift you up out of all those seasons. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कृपया करके निराशा मत होइएगा, क्योंकि यह जो सूखेपन का जो ऋतु है वह शैतान डाल रहा है, लेकिन परमेश्वर, आप याद रखो कि परमेश्वर ने ना कभी आपका हाथ छोड़ा है और ना कभी वो छोड़ेंगे। Commit yourself at least 1 hour of speaking in tongues every day. हर दिन एक घंटा तो आप अनन्य भाषा के प्रार्थना को अपने आप को अधीन कर लो। That is minimum. वह मिनिमम है जी। But if you're eating 3 days, 3 times a day, then I would say you should speak 3 hours in tongues a day. अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हो तो मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट 3 घंटे तो आपको अनन्य भाषा में प्रार्थना करना है। Some tablets they give and they say 1 hour before lunch. और थोड़े दवाई इस देकर कहते हैं कि खाने से पहले लेना So I है। would say लेकिन इसलिए मैं कहना 1 चाहता hour हूँ before lunch, 1 hour tongues, 1 hour before breakfast, 1 hour tongues, 1 hour before dinner, 1 hour tongues. नाश्ते के पहले, खाने से पहले और रात के खाने से पहले 1-1 घंटे You'll का have good अनन्य digestion, भाषा। you'll have good rest, you'll have good health, and you'll have good Christian life. आपको एक अच्छा सा सेहत रहेगा, आपको एक अच्छा सा मसीह का जिंदगी रहेगा। Amen. आमेन Amen. आमेन। But there is one place he did not do miracle. लेकिन वहां पर एक जगह ऐसा है जहां पर परमेश्वर ने चमत्कार Even नहीं in किया। Gethsemane, गेत्सेमने में भी he did a miracle. वहां पर भी उन्होंने चमत्कार He किया। himself is crying, वो वहां पर खुद रो रहे हैं, so much in agony, इतना दर्द में है वो, because next day, क्योंकि अगले ही दिन morning is going to be crucified. अगले ही दिन सुबह वह क्रूस पर चढ़ा दे And ये जाएंगे। हमारा प्यारा पेत्रुस, और our lovable adorable Peter, you know, he took a sword. उसने एक तलवार ली Peter took a sword and cut off a soldier's ear. और वह तलवार लेकर वह सोल्जर का कान को काट दिया। Jesus, लेकिन यीशु in his agony also, उसके दर्द में भी he took the ear and put it back and healed him. उसका कान को लेकर फिर से वहां पर रखकर Miracle चंगाई and दे रहे miracle and हैं। miracle. वह चमत्कार Even in Gethsemane, miracle. गेत्सेमने में भी मिराकल। But you know, that was the last miracle. लेकिन आप जानते हो क्या, वह आखिरी चमत्कार था। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हो? The moment he was arrested, जिस क्षण वह गिरफ्तार हो गए, the moment he was arrested, जिस क्षण वह गिरफ्तार हो गए, the miracle stopped. वह चमत्कार रुक Are you गए। listening to me? क्या आप सुन रहे हो? Until his resurrection, उनके फिर से जी उठने तक there was no miracle. वहां पर कोई भी चमत्कार नहीं था। One may say to me, एक ऐसा कह सकता है मुझे, Pastor, I caught you. पास्टर मैंने आपको पकड़ लिया। You remember आप on जानते the हो, cross he said उस क्रूज पर उसने कहा to the thief, उस चोर को, today you will be with me in paradise. Is it not a miracle? आज ही तुम मेरे साथ परदेश में रहोगे। क्या यह Yes, my चमत्कार brother, नहीं it is a है? miracle. हाँ मेरे भाई, यह But Jesus चमत्कार did है। not say now you will be with me in paradise. He said today you will be with me in paradise. लेकिन यीशु मसीह ने नहीं कहा कि अब तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा, परंतु आज तू स्वर्ग में मेरे साथ रहेगा। कहने का मतलब मालूम है क्या है? क्रूज में 3 लोग डाले गए थे। आपको मालूम है कौन पहले मरा? There were 3 people on the cross. Can somebody tell me who died first?
Come on, loud. You're not confident? Jesus. And the Bible says the soldiers were surprised how he died so quickly. You know what did he mean to that soldier? Because I am going to die before you, and the moment I die, I have purchased your eternity. पहले मैं मर जाऊंगा और मैं मरने के बाद तुम्हारा अनंत काल को Because मैं मोल salvation is लूंगा, after his death, right? क्योंकि जो अनंत काल है वो उनके मरने के बाद है ना. Am I right? मैं सही हूं ना? From the time he healed the ear of the soldier till his resurrection, the miracles stopped. जब से उसके कान को उसने चंगा Shall किया we तब discover से it now? अभी उसको If you turn your देखेंगे. Bible to 2 Corinthians chapter 5, verse 21. For he made him who knew no sin to be He sin for made us. him, he made Father made Jesus. Once again, repeat it. For he made him who knew no sin Who did not even know what is sin. to be sin for us, He became sin for us. that we might become the That we might righteousness, become the righteousness the righteousness of God in him. of God in him. जो पाप से जो अज्ञात था, हाँ? जो पाप से अज्ञात जो था, पाप को ही नहीं जानता था. एक मिनट. जिसको पाप का मतलब ही मालूम नहीं था. विश्वास करता हूं कि इस गहराई को आप समझ रहे हैं. जो पाप जानता ही नहीं था, आगे उसी को उसने हमारे लिए, किस लिए? उसी को उसने मेरे लिए, हमारे लिए पाप ठहराया. पाप ठहरा दिया. आप सुन रहे हैं? और जहां पे पाप हो, जहां पे चमत्कार नहीं हो सकते हैं. इसलिए गेत्सेमने में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, अगर तेरी इच्छा हो तो एक कटोरे को मुझसे हटा दे, फिर भी मेरे मर्जी के अनुसार नहीं, तेरी मर्जी हो. उस गेत्सेमने में वो पाप का कटोरा उसने ऐसा पी लिया कि जो पाप को नहीं जानता था, जो चमत्कार हर रोज करने वाला, उस कटोरे का कीमत चुकाने तक चमत्कार भी बंद हो गए. Are you understanding what I'm saying? क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा Where हूं? there is sin, जहाँ कहीं पर भी पाप हो, God can never send his miracle. वहां पर परमेश्वर कभी भी अपने चमत्कार को You may नहीं be भेज the सकते. best church in the universe. आप शायद इस दुनिया के बहुत उत्तम there is चर्च sin in रहेंगे, life, अगर आपकी जिंदगी में पाप रहेगा तो God did not give a miracle to his own son, who did not become a sin, but who took the sin upon himself. The miracle stopped. अगर परमेश्वर ने वो अपने पुत्र को ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी नहीं बख्शा, जो पाप को ही नहीं जानता था, तेरे लिए मेरे लिए, जब हमारे पापों को अपने बदन पे, अपने जिंदगी पे, अपने जीवन में उसने ले लिया, तो उसके जिंदगी से भी चमत्कार रुक गए. That danger is the power of sin. उतना खतरनाक है वह पाप का Why you ask सामर्थ्य. God? Where is God? Why not my prayer has been answered? But I want to tell you, cleanse yourself in such a way, because God whom you serve is a righteous and a judge and a holy God. जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो ना, वो धर्मी, नीति और पवित्र परमेश्वर है. उसको 10 पैसा दिया तो 10 पैसे में जो आना चाहिए वो देगा ही देगा. उसको अपना 10 रुपए ऐड करके, जिसको कृपा कहलाता है, देगा ही देगा. I don't know if you're understanding आप this. समझ रहे हो या नहीं पता नहीं. हम we know गरीबी में जिएंगे, लेकिन वो गंदा पाप को नहीं छोड़ेंगे. हम we will live in poverty but we are not ready to leave the sin. we know बच्चों को मरने के लिए छोड़ देंगे, We will- परंतु अपना जिद्दी पाप को नहीं we छोड़ेंगे. will leave our children to die but we will not leave our sin. इसीलिए That's why the blessings आशीषें are in problem. वह कठिनाई में है. I hope you are with me here this morning. मैं विश्वास करता हूँ कि सुबह आप सब लोग हमारे साथ हो. People of God, परमेश्वर के जन, church is not a social club, यह मंडली कोई सोशल क्लब नहीं है and we are not the members of a Rotary club. और कोई रोटरी क्लब नामक क्लब का हम मेंबर्स नहीं हैं. Church is a body. मंडली एक देह है, शरीर है. शरीर है.
And the heart of the father is happy only when all the parts of the body are healthy. और पिता का हृदय वो तभी ही खुश होता है जब वह शरीर का हर एक हिस्सा वह सेहतमंद हो। How many of you receiving something? कितने लोग कुछ तो स्वीकार कर रहे हो? You're with me? क्या आप हमारे साथ हो? Wash yourself अपने आप को धो लीजिएगा for your own blessings. आपकी खुद की अच्छाई के लिए। I tell you. मैं कहना चाहता हूँ, Then you see, तब आप देखेंगे every blessing will land. हर एक आशीष वह उतर आएगा। Your envelopes are ready and running around inland, outland, England, Britain, whatever. Everything is flying around until you build the runway. It is never, ever possible. It's never, ever going to land over there. The day you build it, it will land there. आपका जो आशीष है, एनवेलप है, वो आपका सब जो एनवेलप सब थाले लगा करके सील करके सिर्फ आपका नाम उसके ऊपर ये रजिस्टर्ड पोस्ट मालूम होता है ना। जब तक आप अपना उंगली नहीं लगाएंगे, जब तक आप अपना सिग्नेचर नहीं करेंगे, आपको नहीं, आपका पत्नी भी बोलेगी मैं खुद पत्नी हूं, नहीं देगा। वो जिसका है उसको सिग्नेचर देने से ही देगा। अगर तू बोलेगा मेरा पत्नी पवित्र है, मुझे आशीष कर दे, वो बोला मैं उसको आशीष करूंगा, तुझे नहीं। बहुत फास्ट हो गया क्या? रैप की तरह थोड़ा ड्रम्स दे देगा तो रैप भी कर देगा लगता है। हेलो, सुन रहे हैं आप? वो सेहत में रहेगी, तू बीमार रहेगा। Why? Where there is a runway, his healing will flow. क्योंकि जहां पर भी धावन पट्टी है वहां पर उसका चंगाई उतर आएगा। You're understanding what I'm आप saying? समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? The peace, joy, everything is attached with the character of that holiness. वह आपका सारा खुशी, शांति, सब कुछ वह पवित्रता की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ I है। can tell you, तिजोरी भर के रखा गया है। तिजोरी भर के रखा गया है। और चाबी किसके पास है? And where is the key? Here only. आत्मा में आप चलेंगी तो भी झल। If you walk in the spirit, every keys are here only. आप समझ नहीं रहे हैं? Even if you walk now, अभी भी अगर आप रुक चलोगे, चाबियों का साउंड इतना जोर से सुनाई पड़ेगा, शैतान बोलेगा उसको चुरा ले उसका पवित्रता को, क्योंकि अब उसका चाबी देख, जिस दिन ये चाबी खोल देगा ना, तू और मैं चलेगा नरक। समझ में? आपको समझ में? यही कहां है? मेरे पास भी दूर नहीं है, यहीं पे है। it's not far, it's here only. Hallelujah. धो डाल अपने मन को प्रभु के वचन से, धो डाल अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से, धो डाल तेरे चरित्र को परमेश्वर के वचन का नाम का पानी से, धो डाल अपने तौर तरीके को पवित्रता में। मैं कहता हूं सब चाबी एक एक खुलने लगेंगे। Wash your walk with God in the holiness of the water of the word of God. Wash your mind in the water of the word of God. Wash your heart in the water of the word of God. I want to tell you, each key will be put inside and opened. Every blessing will be taken out. Remember, the kingdom of God suffereth violence, and the violent will take it by violence. Now, you with me? And who are they? It's you. और वो कौन है? वो आप हैं। शैतान बोलता है, शैतान से चुरा ले। Take it. The devil will not steal your money. Devil will not steal your vehicle. Devil will not steal your health. If he can steal your holiness, he will lose everything anyway. परमेश्वर शैतान आपका पैसा, आपका गाड़ी, बंगला नहीं चोरी करेगा, क्योंकि एक बार उसने आपका पवित्रता को चोरी कर ले, वैसे भी सब कुछ मिट जाएगा। और पिछले संडे मैंने आपको दिखाया, लुक एट द सीक्वेंस। चोर आता है मारने के लिए, ढाक डालने के लिए नहीं लिखा है। चोर आता है नंबर 1 चोरी करने के लिए, क्योंकि एक बार चुरा ले तो आराम से वो मार सकता है और लूट सकता है। क्या चुराएगा? What will he steal? Holiness. पवित्रता। He is a thief who is coming to steal holiness. वह एक चोर है जो पवित्रता को चुराने के लिए आता है। I don't know if you wash. आप धो लीजिए। Wash it. आप उसको धो लीजिए। Job 1:1. अय्यूब का पुस्तक उसका पहला अध्याय पहला वचन। There was a man in the land of Uz. There was a man in the land of Uz, whose name was Job. Whose name was Job. And that man was blameless. उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। अय्यूब नाम का एक पुरुष था उस देश में। वह खरा और सीधा था। वह खरा और सीधा। खरा यानी कि सच बोलने वाला, खरा और सीधा साधा
ना, हम बोलते हैं इतना सीधा साधा चल जिएगा तो इस दुनिया में कैसे जिएगा, इतना सीधा साधा रहेगा तो कैसा जिएगा। मैं कहता हूं I tell you, वही जिएगा, only he will live. उसका सब ठीक ठाक रहेगा। Everything will be fine with him. और ये ज्ञान बोल के तो धोखा रहता है ना, 4 दिन जिएगा। And who all will be giving him the knowledge? No, only he will live only 4 days. He was blameless. वह खरा था। हाँ, लोगों के सामने नहीं, लोगों के सामने we नहीं। think हम सोचते हैं blameless before people, no matter how you know, there was a beautiful cartoon that was sent to me. एक बहुत सुंदर सा कार्टून मुझे भेजा I गया think I था। shared it with you. मुझे लगता है कि मैंने आपसे उसको शेयर किया। You know, 2 adults, husband and wife, 2 पति पत्नी pulling a donkey. वह एक गधे को लेकर जा रहे हैं। लोग उनको देख के बोलते हैं लोग उनको देख के बोलते क्या हैं पागल है, What mad these people are? गधे को चलाते जा रहे हैं, आराम से उसके ऊपर बैठ के नहीं जा सकते हैं क्या? They are taking donkey and walking. They are just inside. walking with a donkey. Can't they sit on the donkey? Amen. और दूसरा कार्टून में दिखाता है कि ये लोग उसको सुनकर दोनों डोंकी के गधे के ऊपर चढ़ जाते हैं। Both climb on the donkey, looking at the comments of the people. थोड़ी दूर जाते हैं, as a little further they go, one more group of people. What a cruel people these are. Both are sitting on the donkey. लोग उसको देख के बोलते हैं ना, लोग उसको देख के बोलते हैं कितना क्रूरी है ये लोग, दोनों एक गधे पे बैठे हैं। वो सुन के पति उतर जाता है। You know, listening to that, the husband gets down. Little they go further, one more group of people. What a mad fellow. He has made his wife sit on the donkey and like a slave he is walking next to the wife. तीसरा ग्रुप बोलता है, उसको देख के बोलता है कितना पागल आदमी है, महारानी की तरह पत्नी को गधे पे बिठा के उसके बगल में चलते जा रहा है। वो सुन के पत्नी उतर जाती है, पति को बिठा देती है। You know, hearing to that, the wife gets down and make husband sit on the donkey. And a fourth group of people will come. ना 4वां ग्रुप आता है, वो देख के बोलता है क्या पति को दिल्ली नहीं है, बीवी को चला रहा है तो खुद गधे पे बैठा है। The 4th group says, what a mad fellow he is. Being a husband, no mercy only. He is walking and he is sitting on the donkey and making his wife. दोनों तंग आके गधे को उठा के चलने लगते हैं। Both got tired and they carried the donkey. 5th group of people came. What a mad people. They are carrying the donkey instead of riding on it. 5वां ग्रुप का लोग उसको देख के बोलते कितना पागल लोग है, गधे के ऊपर बैठ के जाने के बजाय उसको ही उठा के जा रहे हैं। तो कुछ भी कर ले, लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। कुछ भी कर ले, do whatever you want, people will talk. God is not looking for blameless in the eyes of the people. God is looking to be blameless in the eyes of God. लोगों के नजरिए में परमेश्वर आपको खरा होने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन खुद के नजरिए में परमेश्वर आपको खरा होने के लिए कह रहे हैं। Job was not blameless in the eyes of the people. Job was blameless in the eyes of the Lord because he walked with God. अय्यूब लोगों के नजरों में खरा नहीं था, लेकिन अय्यूब परमेश्वर के नजरों में खरा था क्योंकि वह परमेश्वर के साथ चला। He was blameless and upright, and he was upright, and one who feared God, the one who feared God and shunned evil, and ran away from evil. हिंदी में वह खरा था और सीधा था, वह खरा था और सीधा साधा था, और परमेश्वर का भय मानता, परमेश्वर का भय मानता। कुछ भी देखता तो वो नहीं, परमेश्वर देख रहा है, मुझे ये देखना गुनाह है। कुछ भी छूता जो उसका नहीं है, नहीं परमेश्वर का। यू आर अंडरस्टैंडिंग? आमेन। आगे। और बुराई से दूर रहता था, बुराई से, सुन रहा है? क्या बोलता है लास्ट लाइन? बुराई से। मालूम है क्यों? जितना उसका नजदीक रहेगा ना, जितना बोलेगा, जितना सुनेगा, ये जितना चलेगा उतना डूबेगा। ये जितना इसको संभालेगा उतना जिंदगी सवरेगा। The more you guard this, the more you will be safe. The more you let it loose, the more you destroy your own life. Amen. एक ही शब्द में बताया जाए, वो पवित्र जन था। In one line, he was walking holy with God. Amen. हमारा कल्चर में नारियल पेड़ को it is called as a life giving tree. You know why? Because every part of it can be used. They slit the leaves and take out the stick and make a broom.
They take the coconut, drink the water, eat the coconut inside, and dry it and burn it for the making water hot. The stem, they make use of it and make a threads out of it. So every part of tree is being used. So they respect the coconut tree, especially in Kerala. It is very much respected tree. Are you with me? क्या आप हमारे साथ हो? Amen. आमेन। Now holiness is like that. और पवित्रता उस तरह से है। It may be coconut, वह चाहे कोकोनट हो, नारियल हो, broomstick, या फिर झाड़ू हो, or fire, या फिर आग लगाने का चीज हो, or for thread. या फिर वह रस्सी बनाने का चीज हो। Everything comes from one tree. हाँ, सभी चीज एक ही Healing, वृक्ष से आती है। चंगाई, deliverance, छुटकारा, blessing, आशीष, everything land on one runway called holiness. सब कुछ एक ही धावन पट्टी पर उतरता है। वह धावन पट्टी का नाम है पवित्रता। वाह, एक ही हफ्ते में सीख गए। क्या, कौन सा पट्टी हो? धावन पट्टी। धावन पट्टी। वाह, इतना पवित्र हिंदी बोलेंगे तो हिंदी वालों को भी शायद समझ में नहीं आएगा। ग्रामेटिक वर्ड, धावन पट्टी, रनवे, एक्सलेंट। आमेन। आमेन। होली, पवित्रता। मालूम है आत्मा का मंडल में उसका स्टैंड कैसा था? Do you know what is the stand of holiness You know in what the is his spiritual stand? realm? Look at what the devil is telling about him. See what the devil is, कि शैतान क्या कह रहा है? 10th verse. 10वां वचन। Have you not made a The hedge around devil is telling to God, have you not made a hedge around him, a hedge around him, around his household, around his household, and around all that he has, all around that he has, on every side? on every side? You have blessed the work of his hands. Not only the hedge, you have blessed the work of his hand. Look, सुनिए, कितने लोग सुन रहे हैं? एक हाथ, on this side it is telling Job was living holy. On the other side, the devil is telling God, you have blessed every work of his hand. एक और कह रहा है कि अय्यूब वह पवित्रता से जी रहा है, और एक दूसरे हाथ में कह रहा है कि वह उसके हर एक हाथ का काम को आशीषित किया गया था। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? उसके चारों ओर बाड़ा बांध दिया है आपने। परमेश्वर को कह रहा है, शैतान कह रहा है वो भी। हाँ, जल्दी। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, उसके हर एक काम पे आशीषित किया है, और उसकी संपत्ति, हमें आशीषित चाहिए, पवित्रता नहीं चाहिए। हैं आगे। और उसकी संपत्ति, उसका संपत्ति देश भर में फैल गई है। देश भर में फैल रही है। शैतान कह रहा है, मालूम है क्यों? सुनिए। You are understanding this? आप समझ रहे हो? Are you understanding the connection? इस दोनों के बीच में संबंध आप समझ रहे He is हो? walking in the fear of God. वह परमेश्वर का भय मानकर चल रहा And है, God is blessing every work of His hand. और परमेश्वर उसके हर एक कामों को आशीषित कर रहा है। Amen. आमेन। The work of the hand will not be blessed by going crusade. The work of the hand will be blessed by transforming our lives to be holy before the Lord. हमारे हाथों का कमाई, हमारे हाथों का काम का क्रूसेड जाने से आशीषित नहीं होने वाला है। होएगा तो भी सिर्फ 4 दिन के लिए होने वाला है। वापस बेलगाम आएगा, खो जाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि वचन कह रहा है कि जितना पवित्र तो परमेश्वर के सामने चलेगा, तेरे हाथों का काम भी आशीषित पा रहे हैं। वो डायलॉग ही गायब हो जाएगा जिंदगी से। मैं जो भी कर रहा हूं सफल नहीं हो रहा है, मालूम है, डायलॉग ही मिट जाएगा अपना जिंदगी से जब हम परमेश्वर के साथ पवित्रता में चलते हैं। When we walk with God with holiness. मेरे जिंदगी में भी वो था। Even in my life it was there. क्यों मुझे नहीं दिया जा रहा है? क्यों मुझे नहीं मिल रहा है? Why am I not getting that? Hallelujah. Hallelujah. You think God is a debtor? आपको क्या लगता है परमेश्वर वह कर्जदार है? Within right in time it will be released. सही समय पे आपका वापस Not सब because कुछ you मिलेगा। gave. आप दिए हो इसीलिए नहीं, Because you respected it as holy unto the Lord. क्योंकि वह आपने उसका मान रखा और समझा कि वह पवित्र है परमेश्वर के लिए। Are we learning some holiness? क्या हम कुछ पवित्रता के बारे में सीख रहे हैं? बाहर क्या हिंदी में हमने क्या पढ़ा था अय्यूब के बारे में? सीधा साधा। We read blameless. हाँ? सही है ना? Right? आत्मा में देखिए। And see in the spirit. बाहर, outside, खड़े हो जाए जल्दी। बाहर, outside, एकदम सीधा साधा। he is blameless. आप बोलेंगे, You will tell, पास्टर, इतना सीधा साधा खड़ा रहे ना, तो सोल्जर के तरह क्यों खड़ा है? सीधा साधा। इंगे मुक्का जोत कुटकोंगे। हाँ, exactly. Amen. Now in the humor, don't forget the topic, okay? Now listen. कोई भी बोलेगा, पास्टर,
Anybody will tell, Pastor, इतना भोला भाला ना, this much blameless, no, कोई भी टोपी डाल देगा, that anybody can fool him. इसको मैं अपना लड़की कैसे दूं? How can I give my daughter to him? No, I'm not talking about Sam, okay. But look at Ayub's inside. लेकिन अय्यूब का अंदर का चीज को अब देखिए। सब लोग मेरे साथ आत्मा में आ जाइए। आप सब लोग मेरे साथ आत्मा में आ जाओ। इसका पेट जल रहा है। His stomach is burning. किसका? Whose? शैतान का। Satan's stomach. मालूम है क्यों? Why? You know why? मालूम है क्यों? You know why? क्योंकि इसको पूजने वालों से भी ज्यादा इसका बढ़ोतरी हो रहा है। Because all those who worship him, more than that, he is being praised. जितना इसको छूने के लिए जाता है, How many times he goes to touch him? नजदीक भी जाएगा, Even if he go near him, नरक से किसी को भी भेजता है, he will from hell he will send anybody. चिल्लाते वापस आते हैं। That fellow will come. मुझे मार दो लेकिन उसके पास वापस मत भेजो। Kill me, but don't send me near him. मालूम है क्यों? Do you क्योंकि know शैतान why? खुद कह रहा है, Because Shaitan, क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बनाया? didn't you put fence around him? जो कुछ भी हाथ डालता है, Anybody who wants to put hand upon him, आशीषित हो रहा है। he's being blessed. मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ? What can I do? किस तरह का आदमी? Which सीधा kind of सादा, blameless, परमेश्वर को डरने वाला, who fears the Lord, और शैतान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। and Shaitan cannot do anything. अपने सब शानापन को हम लोग आज ही कुएं में डाल देते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे तेरा वचन का शानापन चाहिए। Put your worldly knowledge into the well and I say, need the wisdom of your word enough. परमेश्वर आपका ध्यान मुझे चाहिए। Amen. Amen. In English, और अंग्रेजी में, I will make a statement if you want to write it down and put it everywhere if you want to listen to me. अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट कहूंगा, आपको लगता है When you walk holy, आप जब पवित्रता में चलते हो, the Lord begins to interfere in all your affairs. आपके हर एक भाग में परमेश्वर दखलंदाजी करने लगता है। दखलंदाजी The करते right हैं। word is दखलंदाजी. You know why? आपको पता है क्यों? पास्टर जी, सही वक्त पे देखिए हमारा नेचर कैसा है, देखिए हमारा नेचर कैसा है, देखिए। पास्टर व्यवहार बैठने वाला था, now business was being settled. ये बंदा आके दखलंदाजी कर दिया, खराब हो गया। This fellow came and interfered and everything got ruined. खराब किया तो हम उसको दखलंदाजी बोलते हैं। If he came and ruined it, we tell it is interference. इंटरफेरेंस ना, उसी वक्त But at the same time, व्यवहार नहीं बैठ रहा है, but the business is not setting right. उसी वक्त कोई आ जाता है And that time somebody comes और आग पर रिकमेंडेशन कर देता है and he comes and recommends और something व्यवहार बैठ जाता है। and the business settles. हम उसको दखलंदाजी नहीं बोलते हैं, Do we call it as हम उसको क्या interference? बोलते हैं? What we call it? पास्टर जी, दूध की जैसे सही वक्त पर आ गया, he came like an angel. उसका एक बात से मेरा काम बन गया। With his one word, my all work Right? got settled. लेकिन मैं दखलंदाजी बोल रहा हूं। But I am saying मालूम है क्यों? interference. Do you क्योंकि know why? हम Because we शैतान को बिके हुए दुनिया में जी रहे हैं। are living in a world which is already been purchased Sold by to the sold devil. to the devil. Amen. Amen. Now, devil wants to play with your life आप एक बार शैतान आपकी जिंदगी के साथ खेलना चाहता because we are है, in his world. क्योंकि हम उसकी दुनिया में But हैं। every time he wants to touch you, लेकिन हर बार वो आपको जब छूना चाहता है, परमेश्वर दखलंदाजी करते हैं। Amen. But the Lord interferes. तू इधर क्या कर रहा है? What are you doing here? वो बोलता है मेरा दुनिया है, He'll tell it's my world, रनवे मेरा है। but the runway is mine. वो बोलता है दुनिया मेरा है। He'll say this world is mine. यीशु मसीह बोलता है इसका हृदय को देख, रनवे। But Jesus says, see his heart, the runway जिसकी is mine. जिंदगी में परमेश्वर खुद दखलंदाजी कर रहा हो, In- कौन सा शैतान उसको छू सकता In है? whose life the Lord himself is interfering, what the devil can do. When the Lord himself is interfering into the matters of his people, which demon can ever touch them and work in their lives? Can somebody shout and say hallelujah? कोई तो हालेलुया कहेंगे। Romans chapter 8, 6 to 11. To be carnally minded is death. हाँ? To be carnally minded is Death. death. हिंदी में क्या बोलता है? शरीर पर मन लगाना हिंदी वाले सुनिए, शरीर के बातों पे मन लगाना तो मृत्यु है। मृत्यु है। पैसा मरेगा, तेरा मन शरीर की इच्छाओं पर लगेगा, तेरा पैसा मरेगा। तेरा मन शरीर की इच्छाओं पर लगेगा, सुन रहे हैं?
आशीष मरते जाएंगे। शरीर के ऊपर मन लगाना मृत्यु है। आगे, परंतु आत्मा पर मन लगाना, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु आत्मा में मन कैसे लगाऊं, ध्यान में बैठ जाऊं, क्या एक कैसा मन लगाना? परमेश्वर ने बोला, मेरा सिखाया हुआ हर एक लफ्ज आत्मा है। सुन रहे हैं? मेरा लिखा हुआ हर एक लफ्ज आत्मा है। इस वचन के अनुसार, इसके वचन पर तू अमल करेगा, जिंदगी, हरियाली, आशीष। एवरी वर्ड, जीसस सेड, एवरी वर्ड आई हैव स्पोकन इज स्पिरिट। You put your mind and heart upon the word of God, life start coming. You put your mind on the desires of the flesh, everything start dying. क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पे मन लगाना, चर्च में बैठने के बावजूद भी अगर मैं शरीर की इच्छाओं पे मन लगाता हूं, परमेश्वर का दुश्मन। ಈಗ ಕುರಿ ಯಾವುದು, ತೋಳ ಯಾವುದು? Which is lamb and which is wolf now? चर्च में बैठे होंगे, परंतु अगर हमारा मन शरीर की इच्छाओं पे रहेगा तो चर्च में बैठा हुआ परमेश्वर का दुश्मन। बाप रे, करेक्ट? या अन्य जाति के बारे में नहीं लिखा गया है। रोमियो में जो, रोम में जो मंडली था, वो मंडली को लिखा गया है। आगे आगे आगे, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और उस तरह का मन परमेश्वर की व्यवस्था को अधीन नहीं होता है। वो परमेश्वर का वचन कहता है तू पवित्र रह, वो घर जाके अपवित्र ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन को वैसा वाला मन अधीन नहीं होता है। आगे, और न हो सकता है, ना वो हो सकता है। आगे, और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक चीजों पर इच्छा रखकर शारीरिक चीजों पे ही बसे रहते हैं, परमेश्वर को कदे ही प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। पता नहीं आप क्या, ये आपको आशीष हो रहा है? आगे, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, परंतु जब परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, तुम में बसता है, उसको मैं इस तरह पढ़ना चाहूंगा। अगर कोई बोलेंगे, अगर परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, यानी कि बसा हुआ है, आगे, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, शारीरिक दशा में नहीं, शारीरिक चीजों पे नहीं, शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। यानी कि अगर कोई शारीरिक दशा में, यानी कि शारीरिक चीजों में मन रखने वाला हो, तो उसके अंदर पवित्र आत्मा ही, मैंने नहीं बोला, आपने बोला, वचन बोल रहा है। मुंह से बोलते हैं पवित्र आत्मा ने दिखाया, पवित्र आत्मा ने दिखाया, पवित्र आत्मा ने दिखाया। वचन क्लियरली बता रहा है, अगर तेरा मन शारीरिक इच्छाओं पर है तो तेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि जहां पे पवित्र आत्मा होता है वहां पे आत्मा का मन रहता है। द साइन, देखिए, जैसे ही किसी को देखते हैं तो बोलेंगे खाता पीता खानदान से लगता है। कैसे मालूम हुआ? तुझे कैसा मालूम हुआ? क्योंकि इतना हट्टा कट्टा है, देखने से मालूम हो जाता है खाते पीते। वेलकम टू दिस जॉय। ओके, खाता पीता है, दुनिया से दिखता है, लेकिन एक हट्टा, सूखा, कोई सूखा एकदम गिरता हुआ आएगा, अरे बाप रे तुझे क्या हो गया, कितने दिन से नहीं खाया होगा ना। नहीं, बिल्कुल उसी तरह तू शारीरिक इच्छाओं को दर्शाएगा तो कोई को किसी को बोलने का जरूरत ही नहीं कि तेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि लिख डाला है कि जो शारीरिक इच्छा दिखाते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं। हम सोचते थे कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन गलत सोचते थे, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा है, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हमारे आत्मा, हमारा मन, हमारे इच्छाएं शारीरिक नहीं होते, आत्मा के होते हैं। कितने लोगों को आशीष, डर लग रहा है। आगे 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 बेटा। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं
तो यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, तो वह उसका लोग ही नहीं, जन नहीं। और पिछले वचन में हमने क्या पढ़ा था? जो शारीरिक इच्छा रखते हैं वो उसका वचन को अधीन नहीं हो सकते, यानी कि मसीह के खिलाफ हो जाते हैं। आगे, यदि मसीह तुम में है। आगे का सुंदर है, देखिए, यदि यानी कि डाउट है ना। कब ये हिंदी में शब्द कब इस्तेमाल हो जाता? यदि यानी कि डाउट है तेरे ऊपर, मेरे ऊपर। पौलुस खुला लिखता है, अगर, यदि, इफ, यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है। तो देह पाप के कारण मर गया है। इसको समझाता हूं, क्लियरली समझाता हूं, थोड़ा रुकिए। हाँ, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हाँ, अगर मसीह हम में है तो शरीर तो पाप के वजह से, जो पाप की जिंदगी हमने जिया था उसकी वजह से मर चुका है, परंतु आत्मा जो है अभी अंदर से जिंदा किया गया है। इज इट क्लियर? इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। किसी को बीमारी का एग्जाम्पल ले लीजिए। हम में कोई तो बीमार है ना, तो इस वचन को पढ़िए उसका कॉन्टेक्स्ट में। इफ समबडी इज सिक, रीड द स्क्रिप्चर इन दैट कॉन्टेक्स्ट। द स्पिरिट, द बॉडी इज डेड बिकॉज ऑफ सिन। उस बीमारी की वजह से शरीर शायद ही मर रहा होगा, परंतु उसका आत्मा पवित्र आत्मा की वजह से, यीशु मसीह की वजह से जिंदा है। हम उनको कहते हैं डरो मत, अगर आज रात को ही हम मर जाते हैं तो भी हमारा आत्मा यीशु के पास जाएगा, क्योंकि शरीर शायद बीमारी से, जो पाप की वजह से आया होगा, पाप की वजह से जो पुराने जिंदगी से वो मर जाएगा वो शरीर। आमेन। धीरज मत खोइए, चंगाई आगे का वचन में चंगाई है, सुनिए। लेकिन अंदर एक आत्मा है जो अपने आप को शुद्ध किया है, परमेश्वर के डर में जी रहा है, और जीवन कहां है? शरीर में नहीं, बुद्धि में नहीं, जीवन कहां है? इंग्लिश में क्या कहता है मालूम है? पढ़िए। And if Christ is in you, if Christ is in you, the body is dead, fast, because of sin, but the spirit of life because of righteousness. But the spirit is life, not of life. फर्क मालूम है? जीवन का आत्मा नहीं, उस आत्मा ही जीवन बन जाता है। Your spirit itself will become life. I don't know if you understand. आत्मा, तेरी आत्मा अंदर जीवन बन गया है। क्यों? क्योंकि मसीह के पवित्रता की वजह से, because you drown it. लेकिन बाहर शरीर मर रहा है। Outside body is dying, but inside the spirit is become life. Thank God for verse 11 also. 11वां वचन के लिए धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर को कहानी यहीं पे खत्म नहीं होता है, आगे पढ़िए। But if the spirit of him who raised Jesus, and the spirit of him, Yahweh, who raised Jesus from the dead, एक मिनट, और उसकी आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से उठाया, आगे, who raised Jesus from the dead dwells in you. Dwells in you. He who raised Christ He from the who dead raised Jesus from the dead will raise your mortal bodies also. अगर उस परमेश्वर की आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से उठाया, अब मालूम पड़ रहा है पवित्रता क्यों चाहिए। ऐसा भी एक भी बीमारी नहीं रुकेगा उसके सामने, जब उसका चंगाई तेरे जिंदगी में आएगा, जब तू परमेश्वर के डर में जीते चला जाएगा। Listen what the Bible says. वो आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से उठाया, अगर वो आत्मा तेरी आत्मा में बस जाता है तो तेरा मृत शरीर को वो मुर्दों में से उठा देता है। Your liver is dying. Receive the spirit of the holiness. Receive the spirit of God. That liver will be healed. I don't know, हिंदी में पढ़िए, समझ में आ जाएगा। यदि उसी की आत्मा, यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिला दिया तुम में बसा हुआ अगर है, वही आत्मा तुम में बसा हो, कैसे मालूम पड़ेगा मुझ में बसा है? कि इसमें मालूम पड़ेगा कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा बसा है, उनके मन शारीरिक इच्छाओं पर नहीं रहते हैं, उनके मन
आत्मा की इच्छाओं पर रहते हैं, वो हमेशा प्रार्थना के लिए तड़पते रहेंगे, वो हमेशा आराधना के लिए तड़पते रहेंगे। उनका दिल जहां पे अन्याय होता है वहां पे रोता है, जहां उनको पवित्रता में दिलचस्पी है। दे वांट टू बी होली, दे वांट टू प्रे, दे वांट टू वर्शिप। यू नो व्हाई? बिकॉज देयर माइंड इज अपॉन द थिंग्स ऑफ गॉड, बिकॉज दे आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, एंड whom the Holy Spirit has filled, the power of resurrection has filled। और जिनके अंदर पवित्र आत्मा बसा हुआ है, पुनरुज्जीवन, पुनरुत्थान करने वाला ताकत उनमें बसा हुआ है। Are you with me? आप सुन रहे हैं? मन फिरा दो, टेक आउट योर माइंड। आप ना उस पवित्र किसी भी ताकत का मुकाबला न करने वाला ताकत का कटोरा हो। You are the vessel of the power of resurrection। I don't know if you're understanding this। You are the vessel of the power of resurrection। चांदी देखा है? चांदी, सिल्वर। With the silver you can make a beautiful glass, but in the olden days with the same silver kings used to make a पान का कटोरा थू। But silver वो लोग उसको पान खा के थूकने वाला कटोरा बनाता था। आमेन। लेकिन धोते वक्त ना, उसको पान का कटोरा होने के बावजूद, थूका हुआ पान का कटोरा होने के बावजूद इतने ख्याल से धोता था। मालूम है क्यों? क्योंकि चांदी से बना है। Even when washing, they would be very careful in washing that. You know why? Because though it is the pan thing is spit in that, but it is made of silver. Now Apostle Paul says, does not have the potter right to make the vessels of the same lump of good use and inferior use? But let it be known to you, O man, that every vessel that can cleanses itself becomes worthy of the royal use। Apostle Paulus कहता है, क्या मटका बनाने वाले को एक ही मिट्टी से मर्यादा का मटका और एक कॉमन यूज, सादा यूज का मटका बनाने का अधिकार नहीं है? परंतु जो कोई भी अपने आप को शुद्ध बना लेता है, वो तो मर्यादा का मटका ही बन जाता है, मर्यादा का कटोरा ही बन जाता है। We are all same lump। हम सब एक ही मिट्टी के हैं, सिर्फ हमें धो लेना है बस। जिस दिन धो लेते हैं, we have to just get cleansed, and the more we get cleansed, जितना अच्छा धोना चालू कर लेते हैं, I tell you, God will begin to use mightily। परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करने लगेगा।